ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی کمزور ہو گئی تھیں۔ ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھیں۔ یہ خبر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے بنا دیر کیے فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے پر پہنچے اور آواز لگائی، فاطمہ، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے دوسری بار پکارا پر پھر بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری بار انہوں نے پیار اور فکر کے ساتھ آواز دی۔ اس بار اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمزور آواز میں جواب دیا، ابا جان، میں دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس صرف ایک چھوٹی سی چادر ہے، اگر اسے پیروں کی طرف کھینچتی ہوں تو میرا سر کھلا رہ جاتا ہے اور سر کی طرف کھینچتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی کا ایک حصہ دروازے کے پاس سے اندر کی طرف بڑھایا اور فرمایا، فاطمہ، اسے اپنے سر پر اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ترنت وہ کپڑا سر پر ڈال لیا اور دروازہ کھول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ کی آنکھیں مرجھائی ہوئی ہیں اور چہرہ کمزور ہو چکا ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، ماں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم بیمار ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دھیمی آواز میں کہا، ابا جان، کئی دنوں سے بھوکی ہوں، بھوک کی وجہ سے سر میں درد اور کمزوری ہو گئی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے اپنی پیاری بیٹی کو دلاسا دیا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی پچھلے 3 دنوں سے بھوکا ہوں، لیکن فاطمہ، یاد رکھو، اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کا سب سے بہترین کھانا کھلا سکتے تھے، لیکن میں نے دنیا کے بجائے آخرت کو پراتھمکتا دی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ، تم صبر کرو، اللہ کی قسم، جنت میں تم مہیلاؤں کی سردار بنو گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چونک گئیں اور پوچھا، ابا جان، پھر حضرت مریم اور بی بی آسیہ کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حضرت مریم اپنے سمے کی سبھی مہیلاؤں کی سردار تھیں اور بی بی آسیہ بھی اپنے سمے کی سبھی مہیلاؤں کی سردار تھیں، لیکن تم، فاطمہ، قیامت تک آنے والی سبھی مہیلاؤں کی سردار بنو گی، جنت میں تم سب سے اونچے درجے پر رہو گی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی یہودی سہیلی کے ساتھ باغیچے میں کھڑی بات کر رہی تھیں۔ تبھی کچھ لوگ آئے اور اس یہودی لڑکی سے کہا، تمہارے پتا نے تمہیں گھر بلایا ہے۔ وہ لڑکی ان لوگوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچنے پر اس کے پتا نے اس سے کہا، بیٹی، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا چنا ہے، وہ یہودی سماج کا ایک بڑا ویاپاری ہے، کیا تم اس شادی کے لیے تیار ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، ابا، اس کا جواب میں کل دوں گی، مجھے تھوڑا سمے چاہیے، میں سوچ وچار کر کے ہی کچھ کہوں گی۔ اس کے پتا نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، آرام سے سوچو اور پھر اپنا فیصلہ سناؤ۔ اس کے بعد وہ یہودی لڑکی دیر کیے بنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہا، میرے ابا نے میرے لیے ایک لڑکا چنا ہے، وہ لڑکا ہمارے یہودی سمودائے کا ایک بڑا ویاپاری ہے، میرے ابا چاہتے ہیں کہ میں اس سے نکاح کر لوں، اب آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی باتیں سن کر کہا، چونکہ تمہارے ابا نے اس لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی طے کی ہے اور وہ اسے صحیح سمجھتے ہیں تو تمہیں اس شادی کے لیے راضی ہو جانا چاہیے۔ لڑکی نے جواب دیا، ہاں، میں اس شادی کے لیے راضی ہو سکتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ میری شادی میں شامل ہوں گی تبھی میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں گی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کو کتنا چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو کہ تم یہودی ہو اور ہم مسلمان، یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ ہمیشہ سے کھنچاؤ رہا ہے، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہودی مسلمانوں کو بالکل سہن نہیں کر سکتے، اگر میں تمہاری شادی میں شامل ہوئی تو میرے پتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے بیچ سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہارے ابا کو بھی تمہارے سمودائے میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور پھر لوگ تمہارے بارے میں بھی مذاق اڑائیں گے، اس لیے میں تمہاری شادی میں شامل نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر اس یہودی لڑکی نے بھاوک ہو کر کہا، اگر آپ میری شادی میں نہیں آئیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ چاہے قیامت کیوں نہ آ جائے، میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی بھاوناؤں کو سمجھا اور کہا، ٹھیک ہے بہن، میں تمہاری شادی میں شامل ہوں گی، یہ بات تم اپنے ابا کو جا کر بتا دو۔ لڑکی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنی اور دوڑتی ہوئی اپنے پتا کے پاس پہنچی۔ اس نے کہا، ابا، میں اس شادی کے لیے راضی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ میری شادی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ضرور آنا ہوگا۔ یہ سن کر لڑکی کے پتا غصے اور حیرانی کے ساتھ بولے، اگر محمد کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، وہ غریب ہے، اس کے پتا بھی غریب ہے، وہ 2 وقت کا کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھا سکتے، ان کے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، اگر وہ تمہاری شادی میں آئے گی تو ہمارے مہمان جو سب امیر اور ویاپاری ہیں ہمیں نیچا دکھائیں گے، اس لیے محمد کی بیٹی فاطمہ کو دعوت دینا ممکن نہیں۔ لڑکی نے دृढ़تا سے جواب دیا، اگر آپ فاطمہ کو میری شادی میں آنے سے روکیں گے تو میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔
लड़की की जिद और सच्चे इरादे को देखकर उसके पिता हार मान गए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा हमारे घर आना चाहती है तो उसे अच्छे और नए कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वह पुराने कपड़े पहनकर आई तो मैं उसे हमारे घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। लड़की अपने पिता की बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और कहा, हे बहन फातिमा, मेरे अब्बा नहीं चाहते कि आप मेरी शादी में आए, लेकिन उन्होंने एक शर्त पर इजाज़त दी है। अगर आप मेरी शादी में आना चाहती हैं तो आपको अच्छे और नए कपड़े पहनकर आना होगा। अब आप बताइए, क्या आप मेरी शादी में आएंगी? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गहरी उदासी के साथ कहा, बहन, मेरी जिंदगी में ऐसे दिन भी गुजरे हैं जब मैंने कभी नए कपड़े देखे तक नहीं। कई कई दिन ऐसे होते हैं जब हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जलता। भूख से हम दिन पर दिन गुजरते हैं। ऐसे में नए कपड़े कहाँ से लाऊं? लड़की ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बातें सुनी और प्यार भरे शब्दों में कहा, अगर आप अपनी जुबान से बस इतना कह दें कि आप मेरी शादी में नए कपड़े पहनकर आएंगी तो मैं यकीन करती हूँ कि आपके रब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए नए और बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम कर देंगे। मुझे पता है कि आपका और आपके रब का रिश्ता बहुत खास है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उत्साह से कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी और दुनिया के सबसे कीमती कपड़े पहनकर आऊंगी। लड़की यह सुनकर खुशी से झूम उठी और दौड़कर अपने पिता के पास गई। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा, फातिमा मेरी शादी में जरूर आएंगी और वह दुनिया के सबसे कीमती कपड़े पहनकर आएंगी। फिर शादी की तारीख और दिन तय हो गया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दिन रात सोच में डूबी रहने लगी। शादी का दिन करीब आ गया था और उन्होंने वादा किया था कि वह शादी में जरूर जाएंगी और नए कपड़े पहनकर जाएंगी, लेकिन उनके पास नए कपड़े थे ही नहीं। इस बात को सोचते सोचते उन्होंने अपनी जायनमाज इबादत की चटाई बिछाई और नमाज पढ़ने बैठ गईं। सजदे में जाकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे मेरे रब रब्बुल आलमीन, इस दुनिया में मेरा और आपका रिश्ता बहुत गहरा है। यह रिश्ता ऐसा है जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना। कई महीने ऐसे गुजरे हैं जब मैंने भूख से दिन काटे हैं, लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे एक नया कपड़ा मांगती हूँ। यह मांग मेरी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है। मुझे ऐसा नया कपड़ा दें जिसे पहनकर मैं अपनी उस दोस्त की शादी में जा सकूं और वहां मौजूद सभी औरतें उस कपड़े को देखकर दंग रह जाएं। हे मेरे रब, क्या आप मुझे एक नया कपड़ा देंगे? यह कहकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फूट फूट कर रोने लगी। उनकी जायनमाज आंसुओं से तर हो गई। नमाज खत्म करने के बाद जब उन्होंने अपने कमरे के कोने में नजर डाली तो वहां उन्होंने 2 पैकेट रखे हुए देखे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन पैकेटों को उठाया और रोते हुए अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली गईं। उन्होंने उन्हें सारी घटना बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह पैकेट हाथ में लिया और जैसे ही उसे खोला उसमें से जन्नत की खुशबू आने लगी। यह वही खुशबू थी जो उन्होंने मेराज की रात महसूस की थी। तब विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गले से लगा लिया और फरमाया, फातिमा, यह कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? यह कोई आम कपड़ा नहीं है, यह तो जन्नत का कपड़ा है। तुमने गुप्त रूप से अल्लाह के साथ जो रिश्ता कायम किया है उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे बेहद खुश है और उन्होंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। तुम्हारे इस कपड़े की फरियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतुल फिरदौस से तुम्हारे लिए यह पोशाक भेजी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, तुम यह कपड़ा पहनकर अपनी सहेली की शादी में जा सकती हो, लेकिन याद रहे कि पर्दा करना मत भूलना। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अदब से जवाब दिया, अब्बा जान, मैं जरूर पर्दे के साथ जाऊंगी। फिर हजरत फातिमा ने वह जन्नत का कपड़ा पहना और जैसे ही उन्होंने उसे पहना उनका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया। उस पोशाक को पहनकर जब हजरत फातिमा अपनी सहेली की शादी में पहुंची तो ऐसा लगा जैसे हर चीज में कोई अलौकिक करिश्मा हो गया हो। शादी में मौजूद सभी महिलाएं नई दुल्हन को छोड़कर हजरत फातिमा की ओर देखने लगीं। हर कोई हैरत से कहने लगा, फातिमा, तुम तो गरीब हो, फिर तुम्हारे पास इतना महंगा और खूबसूरत कपड़ा कहाँ से आया? हमें बताओ, हम यह कपड़ा कहाँ से खरीद सकते हैं? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुम लोग उस बाजार को नहीं पहचानोगे, न ही उस दुकान को और न ही उस रास्ते को जिससे होकर मैं उस बाजार तक पहुंची। उन महिलाओं ने जवाब दिया, हम सब कुछ पहचान लेंगे, बस तुम हमें उसका पता बता दो। तुम्हें पता बताने में समय लग सकता है, लेकिन हमें उस बाजार को पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं होगी। तब हजरत फातिमा ने कहा, मैं जिस बाजार और जिस दुकान से यह कपड़ा लाई हूँ वहाँ कोई आम रास्ते से नहीं जाया जा सकता। वहाँ जाने के लिए एक खास रास्ते से जाना पड़ता है और उस रास्ते का नाम है सिरातुल मुस्तकीम। इस रास्ते की तरफ बुलाने के लिए मेरे पिता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दीन की दावत देते हैं। इस रास्ते की दावत देते हुए मेरे पिता ने ताइफ की जमीन पर 3 बार अपने जिस्म को लहूलुहान किया।
अगर तुम लोग उस रास्ते पर चल सको तो तुम्हें एक बाजार मिलेगा जिसका नाम जन्नत है। उस बाजार में एक दुकान है जिसका नाम जन्नतुल फिरदौस है। उसी दुकान के मालिक ने मुझे यह कपड़ा दिया है। महिलाएं उस कपड़े को पाने के लिए इतनी बेचैन हो गईं कि उनमें से एक ने कहा, फातिमा, हम उस दुकान पर जाना चाहते हैं, तुम हमें वहां ले चलो। इस पर हजरत फातिमा ने जवाब दिया, उस दुकान के मालिक के पास जाने के लिए तुम्हें एक खास वाक्य पढ़ना होगा, क्या तुम वह वाक्य पढ़ सकती हो? तब उन महिलाओं ने एक साथ कहा, हम कर सकते हैं, बस हमें वह वाक्य बता दो जो हमें पढ़ना है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें बताया, वह वाक्य है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी महिलाओं ने यह कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। एक और वाकया, एक दिन एक महिला किसी काम से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आई। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने कई बार आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि हजरत फातिमा के घर के अंदर से चक्की जाता चलने की आवाज आ रही थी। महिला, जिसे उम्मे अयमन कहा जाता था, खिड़की से अंदर झांकने लगी। उन्होंने देखा कि हजरत फातिमा गहरी नींद में सो रही है, मगर घर के अंदर चक्की अपने आप चल रही थी। जैनमाज, नमाज की चटाई पर एक महिला बैठकर तस्बीह माला पढ़ रही थी और दूसरी महिला हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुला रही थी। यह देखकर उम्मे अयमन बहुत हैरान हो गईं और वहां से तुरंत चली गईं। वह सीधा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और पूरी घटना उन्हें सुनाई। यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे अयमन, मेरी बेटी फातिमा चक्की चलाते चलाते थककर सो गई थी और अभी भी उनके चक्की का काम बाकी था। साथ ही हजरत हुसैन जाग गए थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी बेटी की मदद के लिए 3 फरिश्तों को भेजा। एक ने चक्की चलाई, दूसरे ने तस्बीह पढ़ी और तीसरे ने मेरे हुसैन को सुलाया। एक फरिश्ता अदृश्य रूप में चक्की घुमा रहे थे, दूसरा फरिश्ता उनकी बची हुई तस्बीह माला पूरी कर रहा था और तीसरा फरिश्ता हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुला रहा था। जब उम्मे अयमन ने यह सब देखा, उम्मे अयमन ने अल्लाहु अकबर कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से विदा ली। एक और घटना, एक दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहद भूखे थे। उन्होंने फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए खाने को कुछ है? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, नहीं, उस अल्लाह की कसम जिसने मेरे पिता को नबूवत बख्शी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें बिना खाए 2 दिन हो चुके हैं। जितना थोड़ा बहुत था वह सब मैंने तुम्हें खिला दिया। तुम्हें मैंने अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर तरजीह दी है। उत्तर सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हारे लिए खाना जुटाने का इंतजाम कर लेता। हजरत फातिमा ने जवाब दिया, हे अबुल हसन, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसे तुम्हारे ऊपर डालना मैं अल्लाह से शर्माती हूँ। फिर हजरत अली विश्वास और अल्लाह पर निर्भर होकर घर से बाहर निकल गए। बाद में उन्होंने किसी से 1 दिनार उधार लिया और परिवार के लिए कुछ खरीदने का इरादा किया, लेकिन उसी दौरान हजरत मिकदाद से उनकी मुलाकात हो गई। हजरत मिकदाद को देखकर वह चिंतित नजर आ रहे थे। उस दिन का मौसम बहुत गर्म था, सूरज की तपिश से उनकी छाती जल रही थी और जमीन भी बहुत गर्म हो चुकी थी। यह सब उन्हें बड़ी कठिनाई में डाल रहा था। हजरत अली ने उनसे पूछा, हे मिकदाद, तुम्हारे साथ क्या हुआ है जिससे तुम इस वक्त घर और परिवार को छोड़कर बाहर आ गए हो? हजरत मिकदाद ने कहा, हे अबुल हसन, मुझे मेरी स्थिति में छोड़ दो, मेरी हालत के बारे में पूछने का अधिकार तुम नहीं रखते। हजरत अली ने कहा, भाई, तुम मुझसे बिना बताए नहीं जा सकते। हजरत मिकदाद ने कहा, भाई, अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी हालत के बारे में मत पूछो। हजरत अली ने फिर कहा, भाई, यह संभव नहीं है, तुम किसी भी तरीके से मुझसे छिप नहीं सकते। तब हजरत मिकदाद ने कहा, हे अबुल हसन, चूंकि आपने मुझे मजबूर किया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी है कि मैं अपने परिवार के लिए रोजी कमाने की तलाश में घर से बाहर निकला हूँ, क्योंकि जब मैं अपने घर से विदा लेकर बाहर आ रहा था तो मेरे परिवार वाले भूख की ज्वाला में तड़प रहे थे और उनकी चीखों को सहन नहीं कर सका। यह स्थिति देखकर मैं चिंतित होकर घर से बाहर आ गया हूँ। यही मेरी हालत है। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू भर आए और वे इतनी दुखी हुए कि उनके पवित्र दाढ़ी तक आंसुओं से भीग गई। फिर हजरत अली ने कहा, तुमने जिस अल्लाह की कसम खाई है मैं भी उसी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही उसी कारण से घर से बाहर निकला हूँ। मैंने भी एक दिन एक उधारी ली थी और अब मैं तुम्हें अपनी स्थिति पर प्राथमिकता देता हूँ। यह कहते हुए हजरत अली ने दिनार मिकदाद को दे दिया और मदीना के मस्जिद में दाखिल हो गए। वहाँ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोहर, असर और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद जब वह मगरिब की नमाज समाप्त कर चुके थे और निकलने लगे तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारे से बुलाया। हजरत अली पहले सफ में खड़े थे। वे उठे और पैगंबर के पीछे पीछे चलने लगे। जब वे मस्जिद के दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया और रसूलुल्लाह ने उनका सलाम वापस किया।
तब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबुल हसन, क्या मैं रात के खाने के लिए तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? हजरत अली सिर झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। वे लज्जित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि पैगंबर के सामने उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के खाने का मामला और वह कहाँ से आया था और इसे किसे दान किया गया था, यह सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी वाही प्रेरणा के माध्यम से अपने रसूल को बता दिया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की खामोशी को देखा और कहा, हे अबुल हसन, तुम मुझे क्यों नहीं मना करते या फिर हाँ कहकर कहते हो कि मेरे साथ चलो? हजरत अली लज्जित होकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में कहा, चलिए मैं आपकी खिदमत में हूँ। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और फातिमा के घर की ओर बढ़े। जब वे पहुंचे तो फातिमा नमाज खत्म कर चुकी थी और अपने मिहराब में खड़ी थी। उनके पीछे एक बड़ा मटका रखा हुआ था और उसमें से गर्म भाप निकल रही थी। फातिमा ने अपने पिता की आवाज़ सुनकर नमाज की जगह छोड़ी और उन्हें सलाम किया। हजरत फातिमा के लिए उनके पिता से प्यारा कोई नहीं था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सलाम वापस किया और फातिमा से पूछा, तुम्हारा दिन कैसे बीत रहा है? अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपनी दया करे, हमें रात के खाने का कुछ दो। फातिमा ने खाना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली के सामने रख दिया। जब हजरत अली ने खाने की ओर नज़र डाली और उसकी खुशबू पाई तो वह हैरान हो गए और फातिमा से पूछने लगे, यह खाना तुम्हारे पास कहाँ से आया है? इससे पहले मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं